Hair is not just strands, it is your identity. Hair gives you confidence. Hair is what makes you stand out from the crowd. But just imagine, what if that very hair starts to leave you? How would it feel? That is exactly what happened with our patient today. His journey with baldness began in Maharashtra, but it came to a turning point at QHT Clinic. After thorough research and thoughtful consideration, he finally chose to go for a hair transplant. So now, let us hear it directly from him, his real experience of the surgery. Let us begin. Hello guys, good morning. I am Amol from Mumbai, age 30. So today I come at the Haridwar Clinic, branch Haridwar for my hair transplant. The journey was quite excited here. So firstly I will explain why I have taken that decision. Since last 5 years, I was facing the baldness issue. So I was started looking to hair transplant clinic. I did the in-depth research on social media, also through the peoples. So I come to a conclusion that the QHT clinic, I should go here for my hair transplant. Obviously, I will strongly suggest you firstly do your proper own research and then take on the decision, because you may hear that there are some news here currently which was going on, so you need to be trusted on the reputed clinic. In terms of cost, you need to be open-minded, I will say, right? I will keep you posted through this media channel about my hair transplant journey. Also, I will try to share this journey on my personal blog, I will share the link with the QHT team, so that you will get the daily updates about my hair transplant journey as well. I am very excited about this journey. The decision, I started noticing the hair fall since after the COVID. Then also there was one reason of the genetic as well, right? There are sometimes genetic factor also affect you, and one important thing is that the lifestyle also matters for the hair growth. I will say that you need to look out the social media factor as well, to go through the blogs where the people share the experience and in detail reasons why they are doing the hair transplant, and I found all these reasons in the QHT clinic as well. So I decided to go here. फर्स्टली कॉन्फिडेंस भी हमारा मैटर करता है. जब हमारे हेयर नहीं होते तो समटाइम हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है. मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पूरा मतलब डाउन हो जाता है. येस, इट वाज कुछ समटाइम इट इज़ लो व्हाइल यू आर मीटिंग विद द न्यू पीपल्स, because the impression you are giving is quite different if there will be having hair, right? So yes, I will say that the confidence also matter when you have hair. In society perspective as well, you looks completely different and when you have the hair, right? And when the people approach you, their perspective also changes. I will say that. मैं बोलना चाहूँगा कि when I was meeting with my friends, right? So I observed that this is a common issue across, right? Some people did not lose the hair, but they have the hair fall problem has been started. So they are trying to take precautions, but I observed that it was also not working. So मेरे भी दोस्तों के साथ काफ़ी बातचीत हुआ था इस विषय पे कि क्या करना चाहिए. मतलब मैंने देखा कि ऐसे लोगों को भी देखा जिन्होंने काफ़ी कुछ ट्राई किया था, वो वर्क नहीं की. वो इन शॉर्ट में उनका उनका कहना था कि इस पे एक सोल्यूशन भी है, हेयर ट्रांसप्लांट का आप कर सकते हो, बट वो करना भी सही जगह करोगे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. करना ऐसे नहीं कि आपको एक रिपीटेड क्लिनिक जहाँ पे लोगों ने वीडियोज़ दिए है पब्लिक फोरम में, वहाँ पे आपको देखना चाहिए. तो मेरे ऐसे भी फ्रेंड्स है कि अभी जो मेरा रिजल्ट देख के डिसीजन डिसाइड करने वाले हैं आगे आके कि हाँ मेरा फ्रेंड सर्कल इसमें काफ़ी ज़्यादा है. तो यस, उसमें से भी काफ़ी लोग हैं कि वो एक ए बेस पे डिसीजन लेंगे, क्योंकि हमारा काफ़ी बार डिस्कशन हुआ था कि इसमें क्या करना चाहिए. तो हमने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की थी. तब उसके बाद हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक ऑब्वियसली एक फाइनल सॉल्यूशन करके इसको देख रहे हैं. अभी QHT का पता मुझे सोशल मीडिया थ्रू पता चला, राइट? जहाँ पे लोगों ने वेरियस वीडियोज़ में दे हैव बीन शेयर देयर एक्सपीरियंसेस,
राइट। और सिंस मैं मुंबई से हूँ तो मुझे डिसीजन लेना भी थोड़ा काफ़ी डिफिकल्ट था कि इतने दूर जाके हेयर ट्रांसप्लांट करवाना। क्यूएसटी क्लिनिक का एक एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगा कि इनका जो स्टाफ था, जब से मेरा इनिशियल उनके साथ कांटेक्ट हुआ तब से हम लोग मतलब टच में हैं। और उनका जो स्टाफ था मतलब जिनसे मेरी बात हुई थी वो काफ़ी सपोर्टिव और हेल्पफुल थे। लाइक मेरा जो क्वेरीज थे उन्होंने एकदम क्लैमली और ऑन टाइम रिजोल्यूशन दिया उनका। जो भी उनको लाइक मुझे बात करना होता था तो मैंने उनसे बात करके मेरा जो भी क्वेश्चन थे उनसे मैंने रिजॉल्व किए या कंसर्न थे वो रिजॉल्व किए थे। क्यूएसटी क्लिनिक ही मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि फर्स्ट ऑफ थिंग कि मैं देख रहा था कि ऐसा कोई क्लिनिक हो कि जिसके मतलब रिजल्ट्स काफ़ी मतलब पब्लिक फोरम पे अवेलेबल हो। मैं उसको काफ़ी एग्रेसिवली मतलब एक्सप्लोर कर रहा था सोशल मीडिया पे। और हमारे लोकलाइज पे क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि अगर क्लिनिक हो तो एटलीस्ट उसका लोगों से मुझे एक्सपीरियंस मिले कि उनका जर्नी कैसा था उस क्लिनिक के साथ। सिंस क्यूएसटी का मतलब मैंने जब वीडियोस देख रहा था तो काफ़ी सालों से मतलब लोगों के वहाँ पे एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए हुए थे कि मतलब प्री सर्जरी आफ्टर पोस्ट सर्जरी, जो कि कॉन्फिडेंस दिलाता है कि हम डिसीजन ले सकते हैं। और अगर हमें डिसीजन लेना है तो जहाँ पे लेना चाहिए कि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, जिनकी मतलब लोगों ने काफ़ी अच्छे से मतलब उनका जर्नी शेयर किया हो सोशल मीडिया पे, ठीक है। और मैंने इनका जब रिव्यूज़ भी देखे थे तो रिव्यू भी काफ़ी मतलब सही थे। यहाँ पे आने बाद मेरे मतलब जब मैं होटल में रुका हूँ वहाँ पे भी मतलब जहाँ से इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट किया वहाँ के लोग भी मुझे मिले। तो उन्हें एक पर्सन ने मुझे उनका प्री और पोस्ट का शेयर किया, उनको मैं लाइव में मिला और वो देख के भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ जेन्युइनली मतलब रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली ऐसे सब मतलब फैक्टर देख के हम डिसीजन लेते हैं कि ऐसा नहीं कि कुछ एकदम जल्दबाजी में डिसीजन लिया, ऐसा नहीं रहता। हमारा जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है वो बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट स्टेप्स होता है, तो उसको डिसाइड करने से पहले आपको केयरफुली रिसर्च करना चाहिए। मेरा कांटेक्ट हुआ था क्यूएसटी क्लिनिक के, उन्होंने जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो नंबर शेयर किए थे उन पे मैंने कांटेक्ट किया थ्रू व्हाट्सएप। तो फिर मुझे उनके तरफ से मतलब कॉल आया और इन डिटेल डिस्कशन हुआ। तो उन्होंने मुझे लाइक मेरे फ़ोटोज़ मांगे कि सभी साइड के लाइक फ्रंट बैक और अपर साइड के जो भी है वो फ़ोटोज़ मांगे। और फिर मेरे उनके एक डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन रखा और उन्होंने भी मतलब मेरी कंडीशन देखी और एक अप्रोक्सीमेट उन्होंने एस्टिमेट बताया मुझे कि हेयर कार्ड्स कितने लगने वाले हैं। फिर उसके बाद हमने मिल के प्रोसेस किया था। इस दौरान भी मुझे जो मतलब एक ये था पर्सन मतलब जिनके साथ मेरी बात होती थी टीम, वो ज़्यादा कोऑपरेटिव थी और उनसे मुझे रेगुलरली मतलब फॉलो अप कॉल आते थे कि फिर अपॉइंटमेंट का भी उन्होंने कंफर्म किया। मेरे डेट के भी कुछ इश्यूज थे, मतलब 1-2 दिन आगे पीछे हुआ था, तो उन्होंने भी उसको थोड़ा सा समझा और ऑन टाइम मतलब ऐसा नहीं कि मुझे इसी डेट पे कराना है, तो उन्होंने मुझे ओपन ऑप्शन दिया कि आप जिस भी डेट पे कंफर्टेबल होंगे ना उस डेट पे आप हमारा यहाँ पे बुकिंग करा सकते हो। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी थी और जो टीम थी सपोर्टिव थी थ्रू आउट द प्रोसेस। अभी मेरा जैसे देख सकते हो कि स्टेज 5 का अप्रोक्सीमेटली मतलब लेवल है बाल्डनेस का। इसके लिए भी देखा था कि इस स्टेज पे कैसे लोगों ने मतलब हेयर ट्रांसप्लांट किए या नहीं, ठीक है। तो मुझे ऐसे मतलब जिनका स्टेज 5 वो था उनके भी मुझे वीडियोज़ जो जिन्होंने क्यूएसटी क्लिनिक से कराए उनका देखने के लिए मिला था। तो एक ऑल्सो को मतलब कॉन्फिडेंस था कि हाँ मतलब मेरा जिस लेवल पे अभी मतलब है बार्डनेस तो उसको एक ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इट इज़ नॉट लाइक कि ये पॉसिबल नहीं है, बट इट इज़ पॉसिबल, लोगों ने कराया हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसके लिए रिसर्च कैसे कर रही, तो मैंने फर्स्टली यूज़ किया कि गूगल रिव्यू जो कि लोगों ने यहाँ पे पोस्ट किए हैं क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार से, उनके नीचे रिव्यूज़ देखे थे कि लोगों का क्या कहना था उसके बारे में। फर्स्टली फिर सेकंड मैंने देखा कि रेडिट पे भी लोगों ने मतलब उनके व्यूज़ और उनकी कुछ जर्नीज़ वो भी शेयर की हुई है। थर्डली मैंने रिसर्च यूज़ किया यूट्यूब और अपना जो इंस्टाग्राम वो सब है वो सब यूज़ किया, जहाँ पे भी लोगों ने यहाँ का मतलब एक्सपीरियंस था वो शेयर किया था, जब उनका प्री सर्जरी पोस्ट सर्जरी जो था वो शेयर किया हुआ था। तो ये सारी काफ़ी चीज़ें थी कि जिससे मुझे मतलब डिसाइड करना हुआ कि
हम यहाँ पे मतलब हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। मैंने कंपैरिजन भी देखा अदर क्लिनिक के साथ, बट जो एक कंडीशन होती है, जो एक मतलब कॉन्फिडेंस आता है, वो मुझे मतलब कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा था। मतलब इसलिए मैंने अल्टीमेटली किया कि चलो कर ही लेते हैं, मतलब ये सीख लेने से मतलब ज़्यादा सोचोगे तो और कन्फ्यूजन होंगे, तो इससे अच्छा लगा कि लेट्स डू इट from the curiosity clinic. मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ obviously since it was my first day here, और at the same time मैं एक एक्साइटेड भी हूँ थोड़ा सा कि एक जो मतलब मुझे एक इशू था, मतलब उसको एक रिजोल्यूशन मिल सकता है, एक परमानेंट रिजोल्यूशन। तो ये जर्नी काफ़ी एक्साइटेड भी है, और एट द सेम टाइम अभी अगर मैं प्रेजेंट देखूँ तो ये थोड़ा सा नर्वसनेस भी है। ऑब्वियसली नेचुरल रहेगा, जो भी बंदा करेगा ऑब्वियसली हेयर ट्रांसप्लांट, तो उसके लिए इनिशियली उसके माइंड में थोड़ा सा मतलब मैं जब भी यहाँ से मतलब लास्ट वीक तब था वहाँ पे, उस टाइम भी मैं जब सोचता था उस टाइम मुझे मतलब नर्वसनेस होती थी कैसा रहेगा पोस्ट, मतलब बट मैंने ये बात जो मेरे मतलब उनकी टीम थी उनके भी बताई थी, तो वो बोले कि कोई नहीं वाला, यहाँ पे आना मतलब होता है नेचुरल वाला, ये जो होता है सबके साथ होता है, मतलब एक नर्वसनेस इज काइंड ऑफ ह्यूमन, मतलब अपन ह्यूमन है तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ मतलब अगर कुछ सर्जरी होगी तो उसके पहले हमें आएगा ये नर्वसनेस। तो एट द सेम टाइम मेरी मिक्स अप फीलिंग है, एट द सेम टाइम मैं एक्साइटेड भी और नर्वसनेस भी हो थोड़ा सा। तो आगे का जो प्रोसीजर होगा तो मैं शेयर करेंगे, जो पोस्ट सर्जरी के रिजल्ट्स होंगे, वीडियोज़ होंगे, राइट, आपको मिलता हूँ पोस्ट सर्जरी के बाद। So today is the second day of my surgery, and now you can see that my surgery is done. Approximately 5,000 grafts has been used for this transplantation procedure, and procedure went quite smoothly, and there was a little bit pain, but as you know it is a part of the surgery. So there will be obviously pain will be there, but it will be not much. You can easily handle that pain as well. मेरे एक्सपीरियंस के बारे में कहना चाहूँगा ड्यूरिंग द सर्जरी, जैसे कि लगभग 12 घंटे चलती है। मैं सुबह 7 बजे क्लिनिक आया था, तो लगभग रात के 8:30 बज गए थे मुझे निकलने के लिए। तो ड्यूरिंग द सर्जरी यहाँ पे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला, जो डॉक्टर थे और सर्जरी करने वाले जो स्टाफ था काफ़ी कोऑपरेटिव था। लाइक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए होती है ड्यूरिंग सर्जरी, लाइक ब्रेकफास्ट और वॉशरूम ब्रेक, और वो बातें भी करते थे, पूछ रहे थे कि तुम्हें पेन हो रहा है क्या। इस काफ़ी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी और एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर था यहाँ पे, वो एक इम्पोर्टेंट था। और एक उसके बाद जैसे कि आज मेरा पोस्ट सर्जरी भी उनका मुझे कॉल आया था मॉर्निंग में कि लाइक कैसी है अभी, कुछ तबीयत का लाइक ठीक तो है ना। लाइक उन्होंने फॉलोअप कॉल भी किया स्टार्ट, वो जो कि जो पोस्ट सर्जरी होता है वो काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने कुछ फीडबैक दिए कि क्या लाइक मेरा जैसे बीएड से भी केयर लिए गए थे, उन्होंने फिर बीएड के फ़ोटो भी मंगाए और उन्होंने शेयर किया फीडबैक कि अभी फ़िलहाल कंडीशन गुड है। इट्स लाइक कि पोस्ट जो सर्विस होती है वो काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है हर चीज़ में, चाहे ऑटो सेक्टर हो, कोई भी हो। पोस्ट जब आप किसी चीज़ को ये करते हो उसके बाद आपको सर्विस कैसे मिलती है वो काफ़ी मैटर करता है, राइट। वो चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी यहाँ पे कि पोस्ट जो सर्जरी है उनका जो मतलब टीम है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल करती है। लाइक अगर कुछ क्वेरी हो तो इमीडिएटली कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि मुझे सुबह मुझे पता नहीं था कि जो बैंडेज है कितने बजे निकालनी है, राइट। तो मैंने टीम से कनेक्ट किया कि मुझे आज का सेकंड डे था, आज तो बैंडेज निकालनी होगी ना। तो उन्होंने मुझे शायद यहाँ से कनेक्ट करके कुछ मुझे टाइमिंग बताया कि अप्रोक्सीमेटली आप इवनिंग में आ जाना हो क्लिनिक के लिए। तो आपको हर एक मतलब चीज़ के लिए ना माइन्यूटिस में आपको सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ ये कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखते हैं कि रिज़ल्ट कैसा रहता है ओवरऑल। ऑब्वियसली मैं मेरा जो रिज़ल्ट होगा वीकली या मंथली बेसिस पे यहाँ पे शेयर करूँगा, जिससे कि जो थ्रू आउट द मतलब एक जर्नी रहे वो आपके साथ भी शेयर हो ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रू एज वेल, कि देखा जाए कि मतलब जैसे कि see why I'm doing this ki many people earlier share their experience, and that is the reason I was able to take the decision
to do the hair transplant surgery from here. Now it's my duty as well to give back as well, so that many people like me will take the decision based on this as well. I will just say that they go for it, do your research and there's nothing to worry about it. टेक्निक जो यूज़ हुई थी मेरे हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए वो QST थी। इसका बेनिफिट ये होता है कि सभी ग्राफ्ट्स एट द सेम टाइम, लाइक मुझे 5000 ग्राफ्ट्स लगने थे, राइट, तो वो एट द सेम टाइम नहीं निकाले गए थे। उसका जो बैचेस था उसके इसमें से वो निकाले गए थे हर इसमें, जिससे क्या होता है कि जो सर्वाइवल रेट्स होता है जो ग्राफ्ट्स का ना वो काफ़ी बढ़ जाता है। वो इसलिए मैंने वो QST टेक्निक भी से मतलब चूज़ की थी। और मैंने जो वीडियोस देखे थे अर्लियर उनका भी मुझे रेफरेंस था कि हाँ लोगों ने इस टेक्निक से चूज़ करके भी मतलब रिजल्ट्स लिए हैं, तो एक कॉन्फिडेंस था ऑब्वियसली इस टेक्निक को चूज़ करने के लिए। तो बिफोर ऑब्वियसली कि लाइक ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले थोड़ा सा ऑब्वियसली कोई भी नेचुरली नर्वस हो गई, तो वैसे में भी था, बट टीम वाज क्वाइट सपोर्टिव, इसलिए थोड़ा सा वो नर्वसनेस होता है ना, निकल जाता है, वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एरा। सो आफ्टर सर्जरी ना जब मैं घर गया तब मैं अपना हेयर पे देखा, लाइक हेयर लाइन बनाई थी, वो काफ़ी मतलब अच्छी लगी मुझे। और ऑब्वियसली डॉक्टर ने मुझे उसके बारे में कंसल्ट भी किया था, बट जब मैंने उसको हेयर लाइन को देखा और उसको जो जैसे आप देख सकते हो आगे का जो हेयर लाइन बनाई है और उसके आगे जो डेंसिटी बनाई है ना काफ़ी अच्छी है, जिससे क्या होगा कि जो फ्रंट साइड है ना उस वहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी रहेगी हेयर की, जो कि अच्छा था मतलब हेयर लाइन का। मुझे हेयर लाइन काफ़ी सही लगी और मैं अभी क्वाइट न्यू लुक के लिए भी एक्साइटेड हूँ एट द सेम टाइम। अभी ऑब्वियसली कुछ इनिशियल डेज में रहेगा, उसे मुझे केयर लेनी होगी, जो कि डॉक्टर की टीम आपको टाइम टू टाइम सजेस्ट करेगी, वैसे आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं तो आपका रिजल्ट पे भी इम्पैक्ट हो सकता है, उसको सीरियसली लेना होगा। फर्स्ट 25 to 30 डेज आपको सनलाइट में नहीं आना, आपको मेडिसिन दी जाएगी वो टाइम टू टाइम लेना, आपका जो सैलाइन वाटर है उससे आपको हेड पे स्प्रे करना, वो ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती है। और अपना जो लाइक होता है ऑयली फूड नहीं खाना होता है, आपकी जो ट्रांसप्लांटेशन होता है उसके कुछ दिन ऑयली फूड और जो आप अगर ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करते हो वो भी अवॉइड करना होता है। ये सब चीज़ें डॉक्टर बताते हैं आपको। मैं यही कहूँगा कि आपको इसका बारे में सोचना चाहिए, सिंस काफ़ी लोगों ने मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस लिए है, वेरियस फोरम्स पे रिजल्ट्स भी अवेलेबल है। तो हमें ऑब्वियसली अगर डिसीजन लेना होगा जहाँ पे अगर ज़्यादा रिजल्ट दिख रहे हैं तो आप ऑब्वियसली एक ट्रायल लेना बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रायल लिया था। होपफुली जो भी मेरी जर्नी रहेंगी मैं कंटिन्यूसली यहाँ पे शेयर करूँगा और आपको पता भी चलेगा कि रिजल्ट्स आते हैं। वो मतलब ऑब्वियसली टाइम लगता है, विदिन 1 ईयर आपको रिजल्ट देखना स्टार्ट भी हो जाएगा इसके रिगार्डिंग माई सर्जरी एक्सपीरियंस। आई वुड लाइक टू गिव frankly it will be like overstated maybe, but I will go it may 10 out of 10 because what I feel it is quite deserving the rating, because the way they are handled this surgery, the way they are serious about they are doing the work, it's quite important and quite good to see that the people who are doing your surgery are really professional in their field and they know what exactly to do. So yes, they deserve the 10 out of 10 ratings. Firstly, I will do post surgery results like after कुछ टाइम होने बाद हेयर ग्रो होंगे अगर, तो मैं चाहूँगा कि मैं एक वापस से मेरा एक जो ट्रैवलिंग था वो रिज्यूम करूँ, और जिससे जो लाइक मुझे कुछ प्लेसेस पे फ़ोटोज़ लेने थे, बट मुझे लगा कि वहाँ पे अगर हेयर थोड़ी सा अच्छी होती तो काफ़ी अच्छे से फ़ोटो आ सकते थे, क्योंकि प्लेसेस वैसे होते हैं। ऑब्वियसली मैंने काफ़ी एक्सटेंशियल ट्रैवल किया है इंडिया में, तो मुझे लगता है कि वो प्लेसेस में कुछ प्लेसेस होंगे वहाँ पे ज़रूर मैं रिविजिट करना चाहूँगा आफ्टर सम ऑफ टाइम्स। हेयर फॉल के रिगार्डिंग मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे इम्पोर्टेंटली। मेरे डॉक्टर से भी बात हुई थी जो मुझे काउंसिल कर रहे थे, उन्होंने बोला कि आप जितना जल्दी मतलब उस पर वर्क करोगे उतना जल्दी पॉसिबिलिटी होती है कि वो हेयर फॉल का जो होगा उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप उसको इग्नोर करोगे तो मतलब उसका इलाज नहीं है, मतलब नहीं कि आप जाओगे कुछ लगाओगे लाइक ओनियन ऑयल्स, मेनी थिंग्स आर देयर, बट आपको अगर आपकी हेयर की जेन्युइन केयर लेनी है तो जब वो बाल झड़ना स्टार्ट होते हैं ना तभी उस टाइम पे आपने राइट डिसीजन लेना चाहिए। लाइक अब मैंने ऐसे भी वीडियोस देखे कि कुछ लोगों को 2500 या 2000 ग्राफ्स लगे हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने
जल्दी डिसीजन लिया, जिसकी वजह से उनको इन फ्यूचर में ज़्यादा ग्राफ्ट्स लग सकते थे, बट वो नहीं हुआ। उन्होंने ऑन टाइम डिसीजन लिया और कम ग्राफ्ट्स पे उन्होंने अपना जो ये था लुक जो होता है पुराने साइड का वो सेव कर लिया। तो आपको इम्पोर्टेंट होता है कि ज़्यादा सोचना तो इम्पोर्टेंट है, बट डिसीजन एट द राइट टाइम मैटर करता है बहुत। इट्स टू बी लेट। मेरे केस में वही हुआ कि मैंने ज़्यादा दिन इग्नोर कर दिया, तो वो डॉक्टर ने वही बात की मुझे कि आपने थोड़ा ज़्यादा ही लेट किया, जिसकी वजह से मुझे जो बियर्ड के हेयर थे वो भी यूज़ करने पड़े। अगर वो ज़्यादा लेट नहीं होता तो कम ग्राफ्ट्स में भी अच्छा काम हो सकता था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए तो डेफिनेटली अपने खुद की रिसर्च करके एक डिसीजन देना चाहिए और गो फॉर इट। से कि हेयर फॉल के लिए कुछ मुझे सॉल्यूशन नहीं दिखा। मैंने काफ़ी देखा है कि एक सॉल्यूशन मुझे अल्टीमेटली लगा कि हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द ओनली सॉल्यूशन। इट में भी मेनी पीपल तो कुछ लोगों को पता भी होगा, बट मुझे जितना मैंने इसे सर्च किया था उसके अकॉर्डिंग हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी अच्छा और सुटेबल ऑप्शन था मेरे लिए। तो मैं वही कहूँगा कि अगर जो लोग थिंक कर रहे हैं, जिन लोगों को अभी से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, जितना कम टाइम में आप डिसीजन लोगे उतना अच्छा है। जैसे कि मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे यहाँ की इन्फॉर्मेशन ना सोशल मीडिया के थ्रू पता चली थी। जब मैं सर्च कर रहा था कि कौन से क्लिनिक में जाना चाहिए, तो मुझे कुछ क्लिनिक में शॉर्ट लिस्ट हुए थे सब। मैंने सब फैक्टर कंसिडर किए तो उस अकॉर्डिंगली मुझे मेरा जो लिस्ट था उसमें से सबसे टॉप पे क्यूएसटी क्लिनिक आया था। तो मेरा ऑब्वियसली क्यूएसटी क्लिनिक जब मेरा फाइनलाइज हुआ तो मैंने उनके जो रिज़ल्ट थे, ना कि उनके चैनल, ऐसा नहीं कि मैंने उनके चैनल पे जाके देखा, ऑब्वियसली मैंने जो पब्लिक फोरम थे, रेडिट हुआ या अदर इंस्टा, आप बोल सकते हो गूगल रिव्यूज़, जहाँ पे लोग खुले में आके ना अपना ओपिनियन दे सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने देखा जाके। ऐसा नहीं कि उनका सिर्फ यूट्यूब चैनल देखा और डिसीजन लिया, ऐसा नहीं था। मैंने जो लोकलाइज थे आके लोग, ऐसे भी मेरा कॉन्टेक्ट हुआ था, तो उनका भी फीडबैक मैंने लिया था, कंसिडर किया था। होता है कि मैंने वीडियोस भी देखे थे जो कि लोगों ने जो एक्सपीरियंस दिया था यहाँ का, मुझे सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आया मुझे भी। इसलिए मैं अभी आगे आया हूँ कि हाँ, क्योंकि जिन लोगों की वजह से मुझे डिसीजन करने में हेल्प हुई, इसलिए ऑब्वियसली मेरी तरह और भी लोग होंगे जिन्होंने डिसीजन लेना चाहते हैं, तो वो डिसाइड कर पाए। इसलिए मैं अभी आपको आपके सामने आया हुआ यहाँ पे कि हाँ, इट्स नॉट लाइक दैट कि यूट्यूब पे जो लोग बोल रहे हैं और रियलिटी में एक्सपीरियंस डिफरेंट है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसा आप खुद फील कर पाओगे जब आप खुद प्रोसेस करोगे, इस प्रोसेस में से गो थ्रू करोगे, ऐसा डिफरेंट कुछ नहीं है। आपको इट्स काइंड ऑफ आपको ट्रस्ट शो करना होगा इन पे कि ये कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हो कि मेरा जो एरिया है 5000 के अप्रोक्सीमेट ग्राफ्ट्स लगे हैं और सभी ग्राफ्ट्स में कुछ ग्राफ्ट्स थे मेरा 500 जो था बियर साइड से लिए गए थे, तो वो एक था। क्योंकि मेरा डोनर एरिया थोड़ा सा कम था, इसके लिए डॉक्टर ने खुल के सजेस्ट किया कि नहीं, हम इस पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, हमें एडिशनल जो एरिया मिलेगा वहाँ से हम ले लेंगे। तो मैंने हाँ बोला कि हाँ, बियर्ड का भी अपन यूज़ कर सकते हैं इस केस में। ऐसा डॉक्टर को वेल नो नहीं, डॉक्टर ऐसा नहीं कि पॉसिबली करना है तो करना है, ऐसा नहीं है। उनको वो भी उनके काम से अवेयर है, अगर वो चाहते तो एक्स्ट्रा हेयर वहाँ से भी पुल कर सकते, बट सिंस दे वेरी अवेयर ऑफ their duties and responsibilities, they take the decision right one which is best for me. Regarding the PRP सेशन में बोलना चाहूँगा कि इसके बाद मैं भी अभी यहाँ पे आऊँगा PRP सेशन के लिए, तो उस टाइम आपको मैं मेरा रिज़ल्ट भी शो करूँगा ऑब्वियस, और उससे पता चलेगा कि कितना फ़र्क पड़ता है यहाँ पे आने बाद जब। और डॉक्टर के, और मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे अभी फोकस करना चाहूँगा कि प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी चाहिए, जो आपको डॉक्टर भी ऑब्वियसली बता देंगे। जो कुछ दिन पहले होते हैं ना सर्जरी की, प्री सर्जरी पीरियड एंड पोस्ट सर्जरी पीरियड में अपन डिवाइड करते हैं। तो प्री सर्जरी में क्या करना है कि आपका जो ये होता है स्मोकिंग जो होता है, जो डाइट होता है, वो सब आपको सही करना होता है। और आपको ना एक सजेस्ट किया जाएगा कि मेडिकल का रिपोर्ट बनवा लें, ठीक है। अगर आपको किसी रिपोर्ट में PTINR, मेरे केस में PTINR कम था थोड़ा सा, तो मैंने लास्ट कुछ दिन में ना उस पर वर्क किया था कि थोड़ा सा डाइट थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको मैंने नीचे लाने की कोशिश की गई थी।
तो जब यहाँ पे मैंने वापस टेस्ट किया PTINR का, तो मेरा 1.4 से यहाँ पे 1.2 हो गया था। तो जो कि मुझे लगता है कि मैंने जो लास्ट डेज में, कुछ डेज में मैंने एफर्ट लिए थे, वो काम किए थे। इसके लिए आपको फर्स्ट में सजेशन दूँगा कि जो भी आपके मेडिकल रिपोर्ट्स आए ना, उसको थोड़ा सा सीरियसली ले और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करें। लाइक आपका अगर सर्जरी पीरियड, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ों को आपको सही करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी सर्जरी डेट शेड्यूल कर सकते हैं, जो कि आपके लिए भी सही रहेगा। और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जो भी होगा ना, वो आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है उस पीरियड में। ट्राई टू अवॉइड इट, क्योंकि प्री सर्जरी पीरियड भी ऑब्वियसली मैटर करता है, और पोस्ट सर्जरी के लिए भी डॉक्टर को आपको सिमिलर काइंड ऑफ सीनरी, मतलब एक ही सजेशन देंगे कि फर्स्ट 20, अगर आप, हाँ मैं स्पेशली वर्किंग लोगों के लिए बोलना चाहूँगा कि अगर आपका ऑफिस है तो फर्स्ट कुछ डे, लाइक मैंने खुद का बताता हूँ मैंने कैसे किया मैनेज मेरा वर्क। अभी मेरा सर्जरी था, मैंने लगभग 8 दिन की लीव्स डाली हुई है, और उसके बाद ऑलमोस्ट 20 to 20 डेज़ का मैंने वर्क फॉर्म डाला हुआ है। तो जब लगभग मैंने HR से अप्रूवल लेके आगे प्रोसीड किया हुआ है। तो आप सिमिलर काइंड ऑफ वर्क प्लान कर सकते हो अगर आपसे फिजिबल हो रहा है। तो अगर नहीं हो रहा है तो मैं बोलूँगा कि स्ट्रिक्टली लीव्स लो, क्योंकि इस पीरियड में आपको सनलाइट स्ट्रिक्टली अवॉइड करना होता है। सनलाइट के अगर कांटेक्ट में आओगे तो, और या मतलब डस्ट के कांटेक्ट में आओगे तो आपके जो स्किन होगी, जो आपकी अभी मतलब एकदम जस्ट सर्जरी हुई है, तो उस पर इम्पैक्ट हो सकता है। तो आपको इसके बारे में ज़्यादा केयरफुल रहना होगा इसके लिए। सेकंड थिंग कि आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट 30 डेज में ना हेलमेट पहनना अवॉइड करना है। और थर्ड स्टेज में कि ये और एक रहेगा कि आपको मतलब जो मेडिसिन दिए गए हैं ना, डॉक्टर ने जो सजेशन दिए हुए हैं, वो टाइम टू टाइम लेने हैं। और जो बताया गया है कि सलाइन वाटर, वो भी स्प्रे करते रहना है कंटिन्यूसली, जितने बार आपको बताया गया है उतने बार। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है। और आपको एक शीट भी मिल जाएगी जिससे आपको पता चलेगा कि इंस्ट्रक्शन शीट होती हो, आपको यहाँ पे एक बार इसे गो थ्रू कर लेना, उससे आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जब नेक्स्ट में मेरे PRP सेशन के लिए आऊँगा ना, तब मैं मेरे रिजल्ट्स पे, मतलब जो मेरे रिजल्ट कैसे आते हैं वो शेयर करूँगा। तब तक वीडियो पे बने रहिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।